we have learned the integrated rate law for first order and zero order reaction. The rate constant, that is k, equation for k is equals to a minus x, okay, a upon k is equals to 2.303 upon t log of a upon a minus x. This is the rate constant equation for first order reaction, okay. And formula for half life period is equals to k is equals to t half लिखना है, t half is equals to 0.693 divided by k. t half is half life for first order reaction and k is rate constant for first order reaction, okay. Now for zero order reaction, T half is equals to concentration, initial concentration of reactant divided by 2 into K, okay. And rate constant for zero order reaction is equals to K is equals to concentration at time 0 minus concentration at time t divided by time, okay. Concentration, initial concentration of reactant minus concentration at time t divided by time. This is the formula for rate constant for zero order reaction, okay. And unit for zero order reaction is mole per liter per second. For first order reaction is सेकेंड इनवर्स एंड सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन के लिए सिर्फ यूनिट निकाला हमने मोल पर लीटर पर सेकेंड, ओके. नाउ हाउ टू अप्लाई दिस फॉर्मूलाज इन न्यूमेरिकल, ओके. हाउ टू यूज द फॉर्मूला इन न्यूमेरिकल नंबर 6.4 फॉर द रिएक्शन इज गिवन 2NO plus 2H2 gives N2 plus 2H2O, okay. The rate law is given, rate is equals to K into concentration of NO raised to 2 into concentration of H2, okay. यहाँ पे exponent, rate law equation is given and exponent, that is x and y is given. X is equals to 2 and y is equals to 1. What is the order with respect to NO and H2? What is the overall order of the reaction, okay. For overall order of the reaction, simply we have to add the exponent value, that is x and y. X plus y is equals to 2 plus 1, 3, okay. Hence the reaction is third order, okay. And with respect to NO, the order of the reaction is 2, and with respect to H2, the order of reaction is 1. तो सॉल्यूशन में आप लिखेंगे इन द रेट लॉ एक्सप्रेशन the exponent of NO, concentration of NO is 2 and that of H2 is 1, hence reaction is second order in NO and first order in H2. The reaction is third order. reaction जो है third order होगा, 2 plus 1 simply add करना है, third order reaction होगा. ये सिंपल इक्वेशन, सिंपल न्यूमेरिकल है. नेक्स्ट जो है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम नंबर 6.5, the rate of the reaction, okay. Reaction is given A plus B gives product is 3.6 into 10 raised to minus 2 mole per dm cube per second. Rate is given, yes, when concentration of A reactant molecule, concentration of A is 0.2 moles per dm cube and concentration of B is 0.1 moles per dm cube. Calculate rate constant if the reaction is first order in A and second order in B, okay. तो यहाँ पे सिंपली रेट इक्वेशन लिखना है क्योंकि रेट इक्वेशन में K का वैल्यू इजीली निकाल सकते हैं, कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, यस. सो रेट लॉ इक्वेशन बनेगा रेट इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B. एंड
with respect to A the order is first order, okay, the reaction is first order, and with respect to B the reaction is second order. With respect to A the reaction is first order and B the reaction is second order reaction. Okay, तो रेट लॉ इक्वेशन में लिखेंगे द रिएक्शन इज फर्स्ट ऑर्डर इन ए एंड सेकेंड ऑर्डर इन बी, हेंस द रेट लॉ गिव्स रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू 2. ओके, यहाँ से रेट का वैल्यू इज गिवन 3.6 इंटू 10⁻² मोल्स पर सेकेंड. रेट इज गिवन. ओके, you have to calculate the K. Concentration A is also given and B, concentration of B is given 0.1 mole and 0.2 mole per dm cube. रेट को इक्वेशन को रेट अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इनटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू 2 इस तरह से लिख के K का वैल्यू फाइंड करना है. सारी वैल्यूज पुट करनी है. 3.6 इंटू 10⁻² मोल पर dm क्यूब पर सेकेंड डिवाइडेड बाय 0.2 इंटू 0.1. 18 आंसर आ रहा है 18. के कांस्टेंट, रेट कांस्टेंट जो है 18 है. ओके, इस तरह से रेट इक्वेशन, रेट लॉ एंड डिफरेंशियल रेट लॉ अब न्यूमेरिकल्स के लिए हम अप्लाई करते हैं. अगर रिएक्शन में कॉन्सेंट्रेशन गिवन है, टाइम गिवन है, तो हम रेट कांस्टेंट का इक्वेशन फाइंड करेंगे. रेट कांस्टेंट का इक्वेशन यूज़ करेंगे. फर्स्ट ऑर्डर के लिए अलग है, ज़ीरो ऑर्डर के लिए अलग है. यस. प्रॉब्लम नंबर 6.6 क्या है? कंसिडर A प्लस बी गिव्स प्रोडक्ट इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज़ डबल विथ कॉन्सेंट्रेशन बीइंग कांस्टेंट, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B बीइंग कांस्टेंट. A का वैल्यू जो है, पहले A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं और B कांस्टेंट है, तो रेट पे क्या इफेक्ट होता है? जब A का कॉन्सेंट्रेशन डबल करते हैं, रेट भी क्या होता है? रिएक्शन का डबल्स होता है. ठीक है, द रेट ऑफ द रिएक्शन डबल्स इफ़ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इज ट्रिपल एंड दैट ऑफ B इज डबल. कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A को हम ट्रिपल करते हैं, 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A करते हैं. ओके, और 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B करते हैं, तो रेट पे क्या इफेक्ट पड़ता है? द रेट इंक्रीजेज बाय अ फैक्टर 6, मीन्स 6 इंटू रेट. तो इक्वेशन क्या बनेगा? 6 इंटू रेट इज इक्वल्स टू के 3 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए एंड 2 इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. ए सेकेंड इक्वेशन. फर्स्ट इक्वेशन क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू, रेट इज 2 इंटू रेट इज इक्वल्स टू के 2 कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी. तो फाइंड क्या करना है हमको? व्हाट इज ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विथ रिस्पेक्ट टू ईच रिएक्टेंट, डिटरमाइन ओवरऑल ऑर्डर ऑफ द रिएक्टेंट. ओके, फाइंड ये करना है कि रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, ओवरऑल ऑर्डर क्या है रिएक्शन का. तो फर्स्ट हमको रेट लॉ इक्वेशन लिखना है. ऑर्डर पता नहीं है तो एक्स वाई कंसिडर करेंगे. रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए रेज टू एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई. ये एक्स और वाई का वैल्यू हमें नहीं पता है, एक्स और वाई फाइंड करना है. ओके, ये रेट लॉ इक्वेशन लिखा है हमने. रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल. रिएक्टेंट मॉलिक्यूल क्या है? ए एंड बी. ओके, सो रेट इज इक्वल्स टू के इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एक्स इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू वाई. कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इज डबल, द रेट डबल्स. ओके, हेंस 2 into rate, yes, is equals to K into 2 into concentration of A raised to X and concentration of B raised to Y. Yes. और second condition क्या है? 6 into rate is equals to K into 3 into concentration of A raised to X into 2 into B concentration of Y, concentration of B raised to Y. Okay. सिंपली क्या किया है हमने? 3, ये जो इक्वेशन 3 को डिवाइड किया इक्वेशन 1 से, तो क्या मिल रहा है वैल्यू? रेट और रेट कैंसिल हो रहा है. के कैंसिल, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए कैंसिल, बी कैंसिल. येस, रिमेनिंग वैल्यू आ रही है 3 इंटू, यस, यहाँ पे जो वैल्यू है सी, यस, 6 इंटू रेट डिवाइडेड बाय दिस रेट.
K इंटू, ये 3 को हमने यहाँ शिफ्ट किया है, 3 इंटू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. सो ओके, फाइनली जो आंसर आ रहा है 6 इंटू 3 इंटू 2^y. सो 3 2 ज़ा 6, 3 से कैंसिल हो रहा है. ओके, 2 इज इक्वल्स टू 2^y, मीन्स y का वैल्यू जो है 1 है और x का वैल्यू जो होगा वो भी 1 होगा. तो रिएक्शन जो है सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है. इस तरह से रिएक्शन को सिर्फ सिंपली एक ही फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ किया है, दैट इज़ रेट लॉ. और रेट लॉ का इक्वेशन यूज़ करके इक्वेशन को डिवाइड किया है और x और y का वैल्यू फाइंड किया है. और x और y का वैल्यू फाइंड करने के बाद सिंपली x और y को ऐड करना है और ओवरऑल ऑर्डर फाइंड करना है रिएक्शन का. ओके, सेकेंड मेथड जो है वो है ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ओके, जो इक्वेशन हमने फाइंड किया है वो हम ग्राफ पे कैसे पुट करेंगे और स्लोप के हेल्प से हम k का वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे. यस, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. हमको ये जो इक्वेशंस है k रेट कांस्टेंट, उसको ग्राफ पे पुट करना है. अभी फर्स्ट जो इक्वेशन है, रेट इज इक्वल्स टू माइनस DA कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाई DT इज इक्वल्स टू K इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A. ये रिएक्शन फर्स्ट कंसिडर किया है, A गिव्स प्रोडक्ट, तो इसके अकॉर्डिंग रेट का वैल्यू हम ये लिखते हैं. ओके, रेट फॉर्मूला ये है. माइनस साइन जो क्यों है, डिक्रीज हो रहा है, प्रोडक्ट रिएक्टेंट लिखा है इसीलिए माइनस साइन हम माइनस साइन से डिनोट करते हैं. यस, ओके. तो ये जो इक्वेशन बनेगा वो स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. सी को इंटरसेप्ट कुछ नहीं यहाँ पे, तो ज़ीरो कंसिडर करेंगे. यस, k इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A मीन्स यहाँ पे कंसिडर किया है m इंटू एक्स. ओके, और ये जो है d इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A डिवाइडेड बाई dt इज़ y. ये y है एक्सिस पे, ये x एक्सिस पे, और ये m क्या है, स्लोप है. स्लोप यहाँ पे जो बनेगा वो रेट कांस्टेंट है. y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. तो यस, दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन. ओके, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. y इज इक्वल्स टू mx और c का वैल्यू 0 है, तो ये लाइन ओरिजिन से पास करेगा. यस, द स्लोप ऑफ स्ट्रेट लाइन इज इक्वल्स टू k. m का वैल्यू क्या है, k. इक्वेशन से हम उसको रिलेट कर रहे हैं. ओके, ये इक्वेशन से, रेट इक्वेशन से लाइन की इक्वेशन को हम रिलेट करके स्लोप फाइंड करेंगे. तो स्लोप जो भी निकलेगा वो रेट कांस्टेंट बनेगा. एक दूसरा मेथड है, ये जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए. ओके, नाउ रेट कांस्टेंट का इक्वेशन जो है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए, उसको हम ग्राफ पे ऐसा बताएंगे. सी, रेट y है. ओके, तो y एक्सिस पे हमको लिखना है, ये रेट इक्वेशन है. y एक्सिस पे आएगा एंड यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन आ रहा है c. x जो है कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, x इज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A, और लाइन जो है ओरिजिन से पास हो रहा है c. ओके, सो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन एंड स्लोप इज k. स्लोप इज इक्वल्स टू k. ये फर्स्ट इक्वेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन. Now k is equals to 2.303 divided by t log of concentration of A0 divided by concentration of A at time t. ये रेट कांस्टेंट इक्वेशन फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है. ओके, सो इसको इक्वेशन को रीअरेंज किया है. रीअरेंज करने के बाद इसको किस फॉर्म में लाया है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी. फर्स्ट वाला जो था वो सिंपली y इज इक्वल्स टू mx है, जो स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन. ओके, नाउ दिस इज पॉजिटिव स्लोप है. ओके, नाउ नेगेटिव स्लोप है. यस, नेगेटिव स्लोप, k माइनस है तो नेगेटिव आएगा. यस, ओके, तो ये फॉर्म में हमको लाना है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस सी के फॉर्म में. ओके, सो इसको रीअरेंज करेंगे सिंपली हम. सो ये जो वैल्यूज़ है, लॉग का टर्म ए राइट हैंड साइड पे है और ये कांस्टेंट वैल्यू और टाइम जो एक साइड पे, k अपॉन ये इक्वेशन डिनोमिनेटर का टर्म न्यूमरेटर में डालना है, k इंटू टी डिवाइडेड बाई 2.303 इज इक्वल्स टू log of concentration of A0 minus log of concentration of A at time t. okay, now concentration, इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन को यहाँ पे शिफ्ट किया तो ये माइनस साइन होगा. ओके, इस साइड पे लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट करेंगे. साइन चेंज किया है सिंपली यहाँ,
और इक्वेशन को रीअरेंज किया तो y का वैल्यू जो मिल रहा है वो लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A एट टाइम t, m का वैल्यू है k डिवाइडेड बाय 2.303 इंटू x जो है टाइम है, प्लस c दिस इज इंटरसेप्ट, लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A 0 लिखा है मीन्स इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन, A t लिखा है मीन्स द कॉन्सेंट्रेशन एट टाइम t, ओके। सो y इज इक्वल्स टू mx प्लस c, mx जो m जो है स्लोप है, स्लोप का वैल्यू इधर k डिवाइडेड बाय 2.303। तो हम क्या करते हैं, एक एक्सपेरिमेंट करते टाइम t का जब रिएक्शन होता है तो रिएक्शन में हम हर टाइम इंटरवल पे, ओके, कांस्टेंट टाइम इंटरवल पे 5 मिनट देन 10 मिनट्स 15 मिनट्स पे हम k का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, ओके। और सारे पॉइंट्स को हम पुट करते, सारे पॉइंट्स को ग्राफ पे ड्रॉ करते, तो एक लाइन मिलता है, वो या तो स्ट्रेट लाइन होगा, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन, यस, और स्ट्रेट लाइन हैविंग नेगेटिव स्लोप पॉजिटिव स्लोप, तो उसके हिसाब से हम स्लोप फाइंड करते हैं, स्लोप का फॉर्मूला है, ओके। और जो भी स्लोप मिलेगा वो हमारा k का वैल्यू होगा, यस, और k का वैल्यू हमें रिलेट करना है, हमने जो इक्वेशन निकाला है उससे। तो ये जो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है वो एक्सपेरिमेंटल में यूजफुल है, यस। नाउ log of concentration of initial concentration divided by concentration at time t for reactant, yes, and y x axis पे आएगा टाइम और ये स्लोप है, ओके। ये जो पार्ट है वो इंटरसेप्ट है, ये ग्राफ जो है वो इसका है सी। अब सिंपली क्या किया इसको, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, y इज इक्वल्स टू एम एक्स, फर्स्ट वाला भी y इज इक्वल्स टू एम एक्स है, मगर यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे वैल्यू, ये पॉजिटिव है, तो ये कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पे y का वैल्यू है लॉग ऑफ इनिशियल कॉन्सेंट्रेशन डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एट टाइम t, और यहाँ पे सिंपल कॉन्सेंट्रेशन, और इंटरसेप्ट नहीं है मीन्स ये लाइन जो है ओरिजिन से पास होगा, ओके। ये तीन ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है फॉर फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, y इज इक्वल्स टू माइनस एम एक्स, वाई इज इक्वल्स टू एम एक्स एंड y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। नाउ फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, for zero order reaction the rate constant is equals to initial concentration of reactant minus concentration of reactant at time t divided by t। so इसी को हमने रेट कांस्टेंट इक्वेशन को रीअरेंज किया है किस फॉर्म में, स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी के फॉर्म में, यस। सो y का वैल्यू विल गेट concentration of A at time t is y, minus k is m that is slope, and equation x axis पे t होगा, yes, x axis पे t that is time, and initial concentration becomes intercept, okay। so y is equals to mx plus c, reaction ये जो पार्ट होगा वो intercept, time and concentration, this is फॉर ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन, ओके। ज़ीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए तीन डिफरेंट फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए हमने तीन स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन फॉलो किया है, यस, उसी को रीअरेंज करके फाइंड किया है। तो इस तरह से डिफरेंट, नेक्स्ट लेक्चर जो है कोलिजन थ्योरी पे डिपेंड होगा, और एक्टिवेशन एनर्जी। एक्टिवेशन एनर्जी क्या होता है रिएक्शन में, जब मॉलिक्यूल कोलाइड होंगे, ओके। रिएक्शन कब होगा, रिएक्शन तभी हो, ए और बी, फॉर एग्जांपल ए और बी है, ये रिएक्शन का एग्जांपल लेते हैं हम, ए एंड बी गिव्स प्रोडक्ट, ओके। ए और बी पी का फॉर्म करेगा जब वो कोलाइड होंगे, मिक्स होंगे। कोलिजन हम गैशियस मॉलिक्यूल के लिए यूज़ करते हैं, वर्ड कोलिजन इज़ यूज फॉर गैशियस मॉलिक्यूल, ओके, गैशियस सब्सटेंसेस के लिए। तो दो मॉलिक्यूल जब तक डिस्टेंस पे है, दो गैशियस मॉलिक्यूल, और कोलाइड नहीं हो रहा है, रिएक्शन नहीं होगा, यस। जब वो कंबाइन होंगे, कोलिजन होगा, तो एक रिएक्टेंट का एनर्जी मिलेगा हमको और एक प्रोडक्ट का एनर्जी मिलेगा, ओके। रिएक्शन जब भी प्रोडक्ट क्यों फॉर्म करता है, अगर हम दोनों में कंपेयर करें, फर्स्ट किसका एनर्जी ज़्यादा है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल का एनर्जी ज़्यादा है या प्रोडक्ट का,
तो आपको बोला है प्रोडक्ट का एनर्जी ज़्यादा, प्रोडक्ट का एनर्जी कम है, क्यों? क्योंकि रिएक्शन तभी पॉसिबल है जब उसमें एनर्जी लेवल कम हो रहा है। यस, वो स्टेबल हो रहा है। एनर्जी सब्सटेंस में एनर्जी लेवल कम होगा मीन्स वो स्टेबल है। ओके, स्टेबल कंडीशन में एनर्जी लेवल क्या होता है? लो होता है। तो रिएक्टेंट हमेशा प्रोडक्ट में कन्वर्ट क्यों होता है? टू डिक्रीज एनर्जी लेवल डिक्रीज करने के लिए। यस, एनर्जी लेवल डिक्रीज करने के लिए प्रोडक्ट में कन्वर्ट होता है। तो इसके लिए एक बैरियर से गुजरना, बैरियर से जाना होता है, दैट इज एक्टिवेशन एनर्जी। ओके, जो प्रोडक्ट एनर्जी एंड रिएक्टेंट एनर्जी से ज़्यादा होगा उसको हम एक्टिवेशन एनर्जी बोलेंगे। वो उसको हम एक्सप्लेन करेंगे ग्राफिकल वे में। ओके, ग्राफ के थ्रू एक्सप्लेन करेंगे हम उसको, एक्टिवेशन एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो ये पूरा कोलिजन थ्योरी है और उसमें कैटालिस्ट ऐड करेंगे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होगा। कैटालिस्ट ऐड करने पर एक्टिवेशन एनर्जी जो होता है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, वो लो होता है। ओके, सो रिएक्शन इजीली होता है, कैटालिस्ट से रिएक्शन फास्ट होता है। ठीक है, सो नेक्स्ट लेक्चर में जो है कोलिजन थ्योरी होगा और वो केमिकल काइनेटिक्स का एक पार्ट बी और लास्ट पार्ट होगा, दैट इज पार्ट बी, कोलिजन थ्योरी एंड एक्टिवेशन एनर्जी and effect of temperature and effect of catalyst on the activation energy. Okay.